Hello. So today we are going to discuss the ongoing trade tension between China and the United States, specifically focusing on the recent export ban by the China on certain rare materials or minerals. So basically on 3rd December 2024, China announced a ban on export of gallium, germanium and antimony to the USA, that is United States of America. So basically this decision marks a significant escalations in the ongoing trade conflict between the two of the world's largest economy, that is USA, and other side is China. So basically we are going to discuss today about those rare minerals, and we are going to discuss about their productions based on different countries, and we are going to discuss in the context of India also, and after that we are going to discuss one MCQ also that has been asked in UPSC previous years. So that is the reason is stay with us till the end of this video. So we are going to discuss the China banned the export of some rare minerals to the USA. We are going to discuss about everything about this particular episode. So the thing is this was the news why China has banned the export of some rare mineral to the USA. So we are going to discuss what is the meaning of this rare mineral, that we are also going to discuss here. So first important thing is क्या हुआ था, if we see the background, अगर हम इसका एक background देखें तो background में यह था कि USA also has done it, because आपने सुना होगा कि whenever this new elect president, that is Donald Trump. So he has said so many times that he is going to impose some tariffs, okay, on the item that is going to import from the China. So China क्यों चुप बैठेगा? तो China also start, okay, putting such ban. So basically is there is always a trade tension that is going on between China and the USA now regarding this rare minerals ban. क्या हुआ था? China banned the export of some important like gallium, like germanium and the antimony to the US on 3rd December 2024. This is the news. Basically these three important जो minerals हैं उनका जो export है उस पे China has put the ban. China ने बोला भी है कि we have done because of some security concern, but we will check whether it was security concern or some other important things. So the thing is this, let us first discuss this rare minerals that involve in this ban. These are basically gallium, germanium and antimony. Each of these elements play a very crucial role in the modern technological landscape. जैसे फॉर एग्जांपल आप गैलियम की बात करो, इट इज ए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट. वी विल कवर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पोस्ट ट्रांजिशन मेटल. हम सब एक एक करके पढ़ेंगे आज. तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि रेयर मिनरल जो इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं. वो बेसिकली हमारे इन्वॉल्व में गैलियम एक इन्वॉल्व है, एक जर्मेनियम इन्वॉल्व है, एक एंटीमनी इन्वॉल्व है. तो जो गैलियम है बेसिकली इट इज वेरी सॉफ्ट एंड सिल्वरी व्हाइट मेटल है. ये सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल क्यों होता है? क्योंकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट्स होता है दिस इज रूम टेम्परेचर. सो अगर आप गैलियम को अपने हाथ पे भी रखोगे तो अपने हाथ पे जैसे ही रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, इतना ये एकदम सॉफ्ट होता है बेसिकली. तो इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में. जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 है और एक है एंटीमनी जिसका एटॉमिक नंबर 51 है. अब एक चीज और देखते हैं, क्या इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट बोल सकते हैं? क्या क्या हम इन सबको बोल सकते हैं कि दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? आंसर इज नो, दे आर नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ध्यान रखना, दे आर नॉट द रेयर अर्थ एलिमेंट. बी केयरफुल यार, क्लियर और नॉट. क्यों नहीं है ऐसा हम समझते हैं यार. सबसे पहले आप समझो कि व्हाट आर दोज रेयर अर्थ मिनरल्स. वो बोलते हैं किसको? जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं और एलिमेंट्स जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, दे आर बेसिकली 17 केमिकल एलिमेंट्स. कितने? ओनली 17. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए. अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस और एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है दे आर बेसिकली जस्ट 17 केमिकल जो एलिमेंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल, इंक्लूडिंग 15 लेंथेनाइट्स एंड प्लस स्कैंडियम एंड इट्रियम. कितना? 15 जो है वो लेंथेनाइट्स में आते हैं एंड प्लस स्कैंडियम एंड इट्रियम. हम इसके बारे में पीरियोडिक टेबल में देखेंगे where these are available in the periodic table. So they are very crucial. ये क्या? They are very crucial in manufacturing of the advanced technology. Clear है कि नहीं? They are very crucial in the manufacturing of the advanced technology like smartphone, electric vehicles, wind turbines and military equipment. आप ध्यान रखना, they are very important. Despite their name, ध्यान रखना, this is again very important information हम आपको बता रहे हैं. They are very important. Reason is this कि डिस्पाइट देयर नेम, इनके नाम में हम लोग रेयर यूज किए हैं बट दे आर नॉट रेयर,
they are available in abundance in our earth crust in the correct in the, but reason simply क्या है कि वो प्योर फॉर्म में आप उसको क्या बोलते हो ना माइन नहीं कर पाओगे. when you are going to mine in the pure form, it is going to take lot of actually money, and they are always available in the form of minerals together with other elements. So that is the reason is, despite their name rare earth mineral, they are relatively abundant, but they are often found in very low concentration, making extraction challenging and environmentally impact. So because of that reason we start calling them as a rare. Actually में they are not rare. This is very important information है हमारे prelims exam के लिए. And China is the leading producer of rare earth minerals, controlling over 60% of the global supply. आप समझ सकते हो चाइना जो है ना 60% of global supply वो चाइना के पास में है. So these minerals are essential because they are very integral to the many industries. We will cover that later. So अब आपको देखते हैं पीरियोडिक टेबल में. अगर आप देखो तो ये जो लेंथेनाइट्स है बेसिकली कितना लेंथेनाइट्स आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेंथेनाइट्स. ये जो लेंथेनाइट्स बेसिकली है ना, जिसका फॉर एग्जांपल ये सारे जो एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट कर लो टिल 71 तक, ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आ जाते हैं. और ये तो और है आपके हैं, दे आल्सो कम्स अंडर बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट्स. तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है जिसमें 15 तो आपके ये हो गए एंड 2 ये भी हो गए स्कैंडिनियम एंड इट्रियम, देयर आल्सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ओनली. तो आपने टोटल समझ लिया. तो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है टोटल कितने हैं, टोटल 17 है. इसमें आप देखना कहीं पे भी गैलियम का नाम नहीं, एंटीमनी का नाम नहीं है. दीज नेम्स आर नॉट देयर. So that is another important information that you have to keep in mind. They are not the rare earth element in this particular list. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर ग्लोबल में हम देखें पूरे रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोडक्शन, सो जो मैक्सिमम 60 to 72%, 62 और 60% किसके पास है, ये चाइना के पास जाता है. सबसे ज्यादा चाइना के पास जाता है. उसके बाद उसकी तो नंबर आता है फॉर एग्जांपल तो आपका यूएसए के पास भी आपका आ जाएगा ये, और फिर आपका एक ऑस्ट्रेलिया के पास आता है. ठीक है, 10% ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये आपका चाइना हो गया. ठीक है, इंडिया का भी नाम है लेकिन इंडिया ओनली 1% में आता है. इंडिया किस में आता है, जस्ट 1% में. तो इंडिया प्रोड्यूस कितना करता है, जस्ट 1% ऑफ द टोटल रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स. क्लियर दिस. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अब देखें रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन इंडिया. सो इंडिया के पास कितने हैं, इंडिया हैज टोटल 6% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ रिजर्व्स. कितना है, अगर इंडिया के पास हम रिजर्व देखें तो टोटल 6% ऑफ द रिजर्व दैट इज अवेलेबल विथ इंडिया. तो 6% कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बट यस इट इज, बट प्रोड्यूस ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट. आई टोल्ड यू कि रिजर्व तो अवेलेबल है बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच. करेक्ट, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच. इंडिया बेसिकली मीट मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम चाइना ओनली. इन 2018-19 अगर हम देखें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये डेटा दिस वेरी इंपॉर्टेंट है. 92% of the rare earth metals imports by value and 97% by quantity were sourced from the China only. So we are basically heavily dependent on the China. Understood? We are heavily dependent on the China regarding this. Correct or not? So we see this while we are discussing this rare earth minerals, it is very important to mention that this India's position. So India has कितना, only 6% of the world's rare earth reserves, only 6%. ध्यान रखना ये चीज, but it only produce about only 1% of the global output. So most of the India's requirement is made by the imports by from the China only. So that is the case. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखें, जैसे जो 3 इंपॉर्टेंट मिनरल जो न्यूज में थे उनके बारे में पढ़ते हैं क्या है. सो गैलियम, गैलियम बेसिकली किस कैटेगरी में आता है, दिस कम्स अंडर पोस्ट ट्रांजिशन मेटल में आता है. पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पोस्ट ट्रांजिशन मेटल. तो ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी क्या है गैलियम की. गैलियम की प्रॉपर्टी, इट इज वेरी सॉफ्ट सिल्वरी एंड व्हाइट मेटल. क्यों, बिकॉज इट हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. आई टोल्ड यू इतना इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है जस्ट रूम टेम्परेचर, कि इफ यू पुट, अगर इसको आप अपने हाथ पे भी रखोगे ना, हाथ पे, तभी वो पिघल जाएगा, इट विल मेल्ट. दैट इज द रीजन इज which allow it melt in your hand also. So because of that reason it will be a soft. इसका application कहाँ पे होगा, so it widely used in
सेमीकंडक्टर, सी सेमीकंडक्टर इज द न्यू ऑयल राइट नाउ। सेमीकंडक्टर जो है, इंडिया भी देखो कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेमीकंडक्टर में, आप भी देख रहे होगे ना। इवन टाटा, जो टाटा कंपनी है, दे आर आल्सो डूइंग सेमीकंडक्टर। कहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, आप अपने ईवी में लेको, कार में ले लो, हर जगह आपको सेमीकंडक्टर यूज होता है। अब हमें मोबाइल और फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप के बारे में बात नहीं करें, इलेक्ट्रॉनिक, इवन ऑटो इंडस्ट्री में भी सेमीकंडक्टर यूज होता है, स्पेसिफिकली इन गैलियम आर्सेनाइड फॉर द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इमिटिंग डायोड एंड सोलर पैनल। इन सभी जगह में गैलियम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और सिंस हमारी जो स्टोरी है अभी इंडिया की स्टोरी, तो हम लोगों की स्टोरी कहाँ में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में। सो वी ऑल्सो रिक्वायर सच मिनरल्स। वहीं पर अगर हम दूसरा एक नेक्स्ट का बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं, तो जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड में आता है, वो किसमें, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल में आता है, एंड दिस इज कमिंग अंडर ओके मेटलॉइड कैटेगरी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट? इट इज अ ब्रिटल grayish white metalloid with semiconductor properties, correct? So it basically share the character of both metals and non-metals. See, those minerals or those for example elements, those who are having the property of both metal as well as non-metal, they are called as metalloid. ये फिर से आपके लिए important information है for the prelims exam, note it here. एप्लीकेशन क्या है इसका? यूज होता है इन फाइबर ऑप्टिक्स में, जो आपका फॉर एग्जांपल आपको 5G 6G जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है उसमें, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में, एंड एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर द ट्रांजिस्टर्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोलर पैनल्स एंड एलईडी। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका होता है एंटीमनी। ये भी एक मेटलॉइड में आता है, और ये क्या है, ये हार्ड है। सी ये हार्ड है। सो गैलियम हमने पढ़ा था वो क्या था, वो सॉफ्ट था, ये दोनों हार्ड है बिकॉज ये मेटलॉइड है। इनके पास मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है। ब्रिटल एंड सिल्वरी मेटलॉइड है। इट हैज प्रॉपर्टीज अगेन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, इसीलिए वी कॉल दैट मेटलॉइड ऑलरेडी। एंड इसका यूज कहाँ पे है? इज प्राइमरली यूज इन फ्लेम रिटार्डेंट्स, बैटरीज, एलॉय एंड इन सर्टेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बुलेट्स एंड अदर वेपनरी। ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बुलेट एंड वेपनरी। सो जो तीन इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स थे, जो फॉर एग्जांपल चाइना हैज पुट बैन, दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने बताया था कि ये होता क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। सो गैलियम बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, which includes metal that are softer and have lower melting point compared to the transition metals. Understood? Post transition metal are those metals जिनका जो melting point होता है वो बहुत ही low melting point होता है compared to the transition metal. So they are found in group 13 and 15 of the periodic table. और जो metalloid क्या होते हैं? Metalloid basically are those who are having the properties of both metal and non-metal. हमने ये भी डिस्कस किया था। metalloid क्या होते हैं? Those who are having the properties of both metal as well as non-metal. So metalloids are often used in semiconductors, which make them valuable for electronics and technology applications. Clear है? अब अगर हम कंटेक्स्ट देते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस पे क्या कंटेक्स्ट था जहां पे एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है चाइना ने, तो अगर हम देखें, सो it was response to the President Biden's restrictions and President elect, that is Donald Trump's tariff threat. वो लोग लगातार टेरिफ थ्रेट दे रहे हैं। लाइक एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज गिवन द थ्रेट दैट कि अगर ब्रिक्स जो कंट्री है, अगर दे हैव डेवलप्ड एक्चुअली ए काउंटर करेंसी टू द डॉलर, ओके, तो वो हम क्या करेंगे, द 100% टैरिफ दे आर गोइंग टू इम्पोज इन दोज कंट्रीज। सो सच एक्चुअली फॉर एग्जांपल threats are coming directly from the Donald Trump. Same threats coming in response, only China has actually reacted. So followed recent US measures restricting Chinese tech and companies. So that is the reason on December 3rd, China announced the export ban. Clear this? So US dependency अगर हम देखें on rare okay earth metal, so yes, US is heavily dependent because China जो होता है ना, China is supplying around for example 60% of the कितना, around 60% जो है ना world's germanium and 80% of the gallium ये China ही देता है, correct or not? And significant impact on the US semiconductor, defense and renewable energy industry. Important three जो industries हैं यहाँ पे इसका ज्यादा दिक्कत हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो ये आपको एक समझ में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो इम्पैक्ट यूएसए पे करेगा, आंसर यस यूएसए पे करेगा। तो व्हाट यूएसए विल गोइंग टू डू इज सिंपल है, सी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम चाइना ने इसी तरह का एक्सपोर्ट बैन बेसिकली इन केस ऑफ जापान भी लगाया था। उस समय जापान ने क्या किया था, जापान स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, वहां पे एक कंपनी थी
उसको एज अल्टरनेटिव ले लिया था, और वो कंपनी जो है ना जापान के लिए माइनिंग करने लगी थी, तो फिर जापान वाज नॉट दैट हेवली डिपेंडेंट ऑन बेसिकली चाइना। तो दिस इज द केस इज, बट यूएसए केस में दैट्स आई टोल्ड यू कि यूनाइटेड स्टेट्स इट इज हेवली रिलाई ऑन चाइना फॉर these minerals, because China basically produce 60% of the world's germanium and 80% of the gallium. So this ban basically put the pressure on US technology, renewable energy and defense sectors, as basically it makes the sourcing these critical minerals more challenging. बट डेफिनेटली जैसे हमने बताया था कि ये चाइना को भी बैकफायर करने वाला है, क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से खोज ही लेगा ना। सो कुड दीज मेजर्स बैकफायर फॉर चाइना, ये भी हम अगर अगर क्वेश्चन आता है वेदर दीज आर गोइंग टू बैकफायर टू द चाइना, तो आंसर हाँ, यस। व्हाई डिड चाइना बैन दीज मिनरल्स? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग, करेक्ट है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आता है, कुड दीज मेजर्स बैकफायर फॉर चाइना? सो मैं आपको बता दूं, इट इज वर्थ कंसीडरिंग वेदर दिस एक्सपोर्ट बैन कुड बैकफायर फॉर चाइना, बिकॉज इन 2010 दिस आई टोल्ड यू China imposed a similar ban on rare earth export to Japan, which prompted basically Japan to invest in alternate suppliers, like I think the company name was Linus, एक कंपनी था Linus, इसमें जापान ने इन्वेस्ट किया था, जापान इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस सिनेरियो कुड वेरी वेल रिपीट, पुशिंग कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई बेसिकली देयर rare mineral supply chains and reduce dependency on China. Like I told you, India is also heavily dependent, correct or not? So जैसे मैंने बताया था कि जो जो rare minerals हैं, they are often called as the new oil because of their strategic importance, because they are indispensable in the production and advanced technology products. So ongoing trade tensions basically highlight how vital these resources and how control over their supply can shape the global power dynamics. So अगर हमको ये conclude करना है, तो I can say this way कि China's decision to ban the export of rare minerals to the United States is both a strategic move and retaliatory actions. It serves basically as a reminder of the vulnerability that nation face when relying on a single country for critical resources. Like I told you, India is dependent on China. So moving forward, it is likely that both USA and other countries now they will seek to diversify their supply sources, including India, which could have long-term implications for the rare earth mineral market. Clear? So now we are going to discuss one question that I told you that came into the UPSC in 2012. Question was this. Be careful here. Recently, there has been a concern over the short supply of a group of elements called rare earth metal. What? Correct? So why? So इसमें आंसर, China, which is the largest producer of these elements, has imposed some restrictions on their export. I told you in 2010 में जापान के लिए किया था, तो ये बात सही है, yes. Other than China, Australia and Canada and Chile, these elements are not found in any country. See, they are found in India also, I told you, correct or not? So this is statement incorrect हुआ. Rare earth metal are essential for the manufacture of various kinds of electronic items and there is a growing demand for these elements. कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये आपको कमेंट करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि विच ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली टुडेज डिस्कशन, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नाउ लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन हाउ कंट्रीज लाइक इंडिया कैन एनहेंस देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज to reduce the dependence on foreign sources. So you can put in the comment sections, and thank you, and we are going to meet again in next episode. Thank you.